Sorry, we have a problem in the connection. Disculpen, tuvimos unos problemas de conexión, no sé qué pasó. I don't know what happened. But now we can start again. Waiting for people. Vamos a esperar a las personas. Okay. Return again. Okay. Hello. Okay. Hello, Habibi. How are you? Fine. Fat, I'm fine. Fat, I'm fine, but happy. Yeah, your last live maybe network problem. Yeah, I have problem all my life in networking, working with people, with teachers, with all people. Okay. No issue. Hola amigos, estamos aquí de regreso. Tuvimos problemas en el otro live y lo volvimos a conectar. Espero esta información pueda servirles a varios y puedan entender la diferencia entre algunas herramientas. I hope this live can help to many people to understand what is the difference between Logic Analyzer and DSO. उम्मीद है ये लाइव काफी बंदों को हेल्प करेगी उनको ये डिसीजन लेने में कि लॉजिक एनालाइजर और डीएसओ में क्या डिफरेंस है. Okay, now we can see in this place, we can see Logic Analyzer, and in this place, we can see DSO. ओके ऊपर जो आप वेब शेप देख रहे हो ये एक्चुअली डीएसओ जो है ना ये इसमें लॉजिक एनालाइजर भी है प्लस एनालॉग चैनल्स भी हैं. ऊपर की तरफ आपको लॉजिक की वेब शेप मिल रही है और नीचे की तरफ आपको नॉर्मल जो एनालॉग चैनल्स हैं उसका वेब शेप मिल रहा है. तो आप देख रहे हो दोनों में सेम ही है स्लेव एड्रेस Okay, या now डाटा वगैरह. we can see the same address in a Logic Analyzer and the same address in oscilloscope. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो लॉजिक एनालाइजर और ऑसिलोस्कोप आपको सेम एड्रेस ही डिकोड करके दिखा रहा है. Okay, now we need to understand first what is the difference between one tool and another tool. अभी आपको ये समझना चाहिए कि एक और दूसरे टूल में डिफरेंस एक्चुअली है क्या. Now we connected iPhone 13 Pro Max and connecting serial Logic Analyzer and oscilloscope together. ओके 13 प्रो मैक्स जो है कनेक्ट किया गया है और पैरेलल में आपका लॉजिक प्लस डीएसओ दोनों कनेक्ट किए गए हैं सेम प्रोब किए गए हैं सेम पॉइंट पे. Okay, now we can see Rival Logic Analyzer is for measure in oscilloscope series MSO for CAN decoder with Logic Analyzer. ओके जो लॉजिक एनालाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं वो इनबिल्ट है स्कोप में. ये चाइनीज नहीं है जो 300-400 रुपए का आता है. तो इसमें आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेंगे तो अच्छा कंपैरिजन रहेगा यहाँ. Okay, now we see in this oscilloscope Logic Analyzer and oscilloscope, and in another model the same function CAN decoder the same bus data. तो जैसा कि आप डीएचओ में देख पा रहे हो और एमएसओ में देख पा रहे हो दोनों तरफ आपको सेम ही डाटा डिकोड हो रहा है. Okay, now we need to understand some special info about the method, the measure in oscilloscope and Logic Analyzer. अब आपको कुछ स्पेशल बातें जो समझनी चाहिए मेजरमेंट करते टाइम लॉजिक एनालाइजर प्लस डीएसओ में. Okay, the first topic for we understand what I can measure with oscilloscope and what is the method for measuring Logic Analyzer. पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप लॉजिक में क्या मेजर कर सकते हो और डीएसओ में क्या मेजर कर सकते हो. Okay, number one, the Logic Analyzer can decode the bus data digital signals. लॉजिक एनालाइजर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स का डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का आपको बस डाटा डिकोड करके दिखा सकता है. Okay, you can use Logic Analyzer for decode bus data from I2C, I2S, UART, SP32, LAN, CAN, any bus data protocol.
बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, I2C वगैरह, SPI वगैरह, कैन हो गया, लैन हो गया, जिनके आप डाटा डिकोड करके लॉजिक एनालाइजर के साथ देख सकते हो। Okay, digital oscilloscope can decode bus data too, but only the language inside the oscilloscope already programming. डिजिटल ओसिलोस्कोप जो है, डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप, वो भी आपको डिकोडिंग करके दिखा सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। But now we need to understand this. We have, for example, this signal digital, and this is logic analyzer and oscilloscope. It's the same method. ओके, You can push one by one. I can see the same info because they code the same address, the same info, the same knowledge, the same transmission. जब तक की बात डिजिटल सिग्नल की हो रही है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की हो रही है, तो आप डीएसओ को और आपके लॉजिक एनालाइजर को, आप दोनों को यूज कर सकते हो, कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, these two tools, different tools, can measure the same protocols in the same and show us the same decoded data. ये दोनों टूल्स आपके लिए डिकोडिंग कर सकते हैं और दोनों सेम डाटा आपको दिखाएंगे। But now we need to understand this is different to these other signals. This is, for example, buck or switching or ampere current or transmission MIPI or whatever other signal. You need focus in this. It's different these blocks to these blocks. ओके, चलो, पहले डिजिटल कम्युनिकेशन की हमने बात करी। अब एग्जांपल के लिए आप चेक करना चाह रहे हो कि बक की कॉइल पे स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही, और कॉइल में आप वेव शेप देख के अंदाजा लगाना चाह रहे हो कि नॉर्मल वर्किंग हो रही है कि नहीं हो रही, या फिर आप कोई मिपी वगैरह का डाटा चेक करना चाह रहे हो। अब क्या होगा? Okay, now we can see the same info in the oscilloscope, okay? Same logic, same digital oscilloscope, can decode the same block, same time, same info, can show you the same info. अब क्योंकि हम यहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉजिक में और डीएसओ में आपको सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, डाटा भी सेम मिल रहा है, एड्रेस भी सारे सेम मिल रहे हैं। Okay, now here we can see already is connected logic analyzer. You see green color because detect the signal from logic analyzer point, measure point. ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो, लॉजिक एनालाइजर का जो आपको पॉइंट है वो हाईलाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रोब कर रखा है, वहां प्रोब लगा रखी है। Many oscilloscope have the same connection between logic and analog channels because many oscilloscope have this port for can connect. You can see new model have the same port. बहुत सारे मॉडल्स में आपको ये सेम ही पोर्ट मिलता है लॉजिक के लिए, जो कि कई बार दूसरे चैनल से भी जुड़ा होता है। Why the companies for oscilloscope add this decode function? Why need they add to technicians one other tool different if can measure the same parameter in analog channels or digital oscilloscope? What is the reason? The reason is sometimes you need only the code bus data. For example, one Arduino and one tool or another circuit different only need go to measure logic states. आपको ये समझना चाहिए कि कंपनीज ने ऐसा क्यों किया है। जब आपको 4 चैनल एनालॉग मिल रहे हैं तो लॉजिक क्यों दिया गया है? जब लॉजिक दिया गया है तो फिर 4 चैनल आपको एनालॉग के लिए क्यों दिए गए? आपको थोड़ा यहाँ डिफरेंस समझना चाहिए, कंपनी ऐसा स्कोप में क्यों कर रही है। Remember, the tools is for do your life more easy. आप याद रखिए कि जो टूल्स होते हैं वो आपकी जिंदगी को और इजी तरीके से, मतलब आपकी रिपेयर में आपके हेल्प करने के लिए होते हैं। Many times we have problem in phones, but no, it's only digital signal the problem. Sometimes it's analog signal. बहुत बार फोन में प्रॉब्लम होती है जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन एनालॉग पार्ट में जुड़ी हुई होती है।
Okay, now you see in the oscilloscope, you can see the digital signal. I remove now one measure point in oscilloscope and connect another point for you can see the difference. एक पॉइंट डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। I want to show you in my hands. I hope you can see. Wait. Here, no, this is my face. Maybe here. Okay, you can see good my hand. या ओके। Okay, sorry for my disturbing my desk. नो इशू नो। Okay, एक्चुअली ये power जो off. लाइव है ना, हम ये पीसी से करने वाले थे, तो कैमरास वगैरह ऑलरेडी सारे सेटअप थे, लेकिन अपलोड की स्पीड का इनके कोई इशू आ रहा था, तो उस वजह से वो हो नहीं पाया, बार बार लैग हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिले आ रही थी, तो इसलिए हमने ये मोबाइल से किया है, मोबाइल से कर रहे हैं। Okay, now I only connect the measure point, disconnect the measure proof from logic. This is for logic analyzer. I'll make a jumper for measure one line only voltage for you can see difference. ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक जंपर कर रहे हैं किसी वोल्टेज लाइन पे, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि जब आप वोल्टेज चेक करने जाओगे तो स्कोप वहां आपको क्या रिजल्ट देता है और लॉजिक वहां क्या रिजल्ट देता है। We go to connect, no need connecting in iPhone, we can connect in power supply only for C voltage, okay? आईफोन में आप सिर्फ पावर सप्लाई अटैच करोगे तो आपको वोल्टेजेस दिख जाएंगे, मतलब फोन ऑन करोगे तो पूरा आपको एलसीडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। Okay, this is voltage. Go to remove one ground, ground to ground, okay? Now it's connected. All people know when you connect oscilloscope to one line from voltage, all people understand what is the difference, yeah? अभी जैसे ही ये वोल्टेज वाली लाइन हम चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक में और ओसिलोस्कोप में क्या डिफरेंस आपको पता चलेगा यहाँ। Go to change the voltage in power supply because remember logic analyzer no can measure voltage, high voltage. Well, go तो to push, check. डीसी सप्लाई में जो है वोल्टेज हमने डाउन करी है, क्योंकि Logic लॉजिक एनालाइजर analyzer हाई only वोल्टेज चेक can नहीं कर measure, सकता है। only can measure, oh sorry, here, 1.4, 2.5, 1.6, 1.2, 900 millivolts, 1.3. We can edit, but no need damage my proof point. Go to show only low voltage for no damage my tool. स्कोप ऑलरेडी सेटिंग कर रखी है उसकी, तो उसको बार बार छेड़ेंगे नहीं, जस्ट आपको दिखाते हैं कि वोल्टेज चेक करते समय यहाँ क्या होता है। Okay, go to show you. Now you can see. Go to open the. I go to remove channel 1, channel 2, and go to see. Okay, large. This no need. Only we can see now the oscilloscope or logic analyzer only show you voltage. You see the red color? तो अब जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, स्कोप और लॉजिक सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, एक वोल्टेज का लेवल दिखा रहा है, रेड और ग्रीन Go में। to add multimeter, DVM. Go to change the. Oh, sorry. Here. Now you see green. Green कलर अभी signal चेंज किया है, ग्रीन किया only have है। voltage, but you don't know what is the voltage. I increase the voltage now.
ग्रीन सिग्नल में आप सिर्फ वोल्टेज देख पा रहे हो, लेकिन कितनी You वोल्टेज है वो check. आपको क्लियर नहीं हो Now रहा। I move 3.5 volts, and here no move nothing. I go to move again. Okay, more. अब You can see now. अभी आप जैसे कि देख पा रहे हो, डीसी सप्लाई में हमने वोल्टेज का लेवल चेंज किया, लेकिन आप स्कोप में देखो कोई लेवल चेंज नहीं हो रहा, Check. वो एक ही वोल्टेज का लेवल आपको दिखा रहा है। Now I change for 1.5, and here is the same meter. No move the square. You see the square in the signal? It's the same because it's high level. Whatever the difference between 0 to upgrade the voltage, you can see the same size because you only can add here in this tool. You can add change here. Sorry, change. What is the size for the signal? Go to small. Check small signal. Small signal, small range. Go to move to large. Large signal, you see the square more big. Only for you see details, but no show you the voltage. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, लॉजिक से जब आप किसी वोल्टेज वाली लाइन को चेक कर रहे हो, हमने पहले अलग वोल्टेज का लेवल रखा डीसी पे, फिर बाद में हमने डीसी पे वोल्टेज का लेवल चेंज किया, लेकिन आपने नोटिस किया वेव शेप सेम रह रही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लॉजिक एनालाइजर आपको वोल्टेज सेम ही दिखा रहा है, ऑलवेज सेम ही दिखा रहा है। आप वोल्टेज की लाइन लॉजिक एनालाइजर से चेक नहीं कर सकते हो। Check this. We have this 0 volt. We make 2 volts in oscilloscope. And in this in logic, maybe this size. I go to down the voltage. In oscilloscope can see this meter go up and go down. But in logic, only show you the same parameter. All time is high because it's only voltage. No can show you what is the difference, the difference between low voltage or high voltage. Only feeling what is the meter high and show you in the screen what is the high level, but not show you when change the meter in the line. लॉजिक का मतलब ही होता है जीरो और वन। देखो अभी लॉजिक में क्या सीन है, मान लो ये लेवल है आपका 0 वोल्ट का, दूसरा लेवल है 1.8 का, ठीक है? तो लॉजिक आपको ये लाइन डिटेक्ट करके दिखा रहा है, लेकिन अगर आप 1.8 की जगह 1.5 कर रहे हो, लॉजिक नहीं शो करेगा, यहाँ सेम ही लाइन रहेगी। अगर आप 1.8 की जगह 2 वोल्ट आ रहे हैं लाइन में, तो भी लाइन आपकी सेम ही लेवल पे लॉजिक आपको दिखाएगा। मतलब क्या है, लॉजिक में जो आपने वोल्टेज सेट करी कि मेरा लॉजिक कितने वोल्ट का रहेगा, 1.8 का रहेगा, 2.8 का रहेगा, 1.2 का रहेगा, कितने का, वो जब तक हाई वोल्टेज आ रही है, मतलब एक फ्लोटिंग कंडीशन से ऊपर वोल्टेज आ रही है, 3 वोल्ट को भी सेम ही लेवल दिखाएगा, 5 वोल्ट को भी सेम ही लेवल दिखाएगा, 1.8 को भी सेम ही दिखाएगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ रही है। वोल्टेज आप क्यों चेक कर रहे हो? क्योंकि आप लेवल चेक करना चाह रहे हो, आप उसमें वेरिएशन चेक करना चाह रहे हो, लेकिन लॉजिक एनालाइजर कभी भी आपको वोल्टेज में वेरिएशन नहीं दिखाएगा। इसके नाम से भी ये चीज क्लियर होती है। Check, for यार example, this is point positive. This is ground. Go to logic analyzer. Now we have in power supply small voltage, 1.5 volts, and we can see now have high level. Okay, now I do this. Check my button for power off. Okay, power on, तो only show you voltage. Okay, I go to increase the voltage. Go to change. Okay, go to see first. Check first what is the line for the signal. In the one square, only one square can see. Okay. मोस्टली वन डिवीजन। या Now we go to change here the voltage to update to 3.5. 3.5. Okay. You can see या 3.5. यस 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 Go to power off again and power on. Now या सेम you see it's सेम the same लॉजिक। method. It's the same division. या Yeah, I do again अभी for the देखो, people can अगर आपको understand. फर्क पता चल रहा हो, पहले Remove. डीसी सप्लाई पे, ओके वेट वेट, लेट मी एक्सप्लेन। आपने Okay. डीसी सप्लाई पे पहले हमने देखा 1.5 वोल्ट हमने सेट करे थे, तो भी आपको वन डिवीजन का डिफरेंस दिख रहा था स्कोप में।
स्कोप यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रोब आपकी लॉजिक एनालाइजर वाली है। मतलब स्कोप के अंदर जो लॉजिक वाला फंक्शन है वो वाला हम रेड कलर में यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपने 1.5 चेक किया, सेम वन डिवीजन लाइन ऊपर जा रही है, उसके बाद वोल्टेज सेट किया गया 2.5, ये लेवल तब भी सेम ही रहा, लॉजिक ने इसको हाई नहीं किया। आप बात समझ रहे हो? लॉजिक का मतलब ही होता है वो एक वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है, हाई है तो एक लेवल दिखाएगा, कितनी हाई है या थोड़ी उससे लो है उसको कोई मैटर नहीं है, वो एक ही लेवल दिखाएगा। लो है, बंद है तो नीचे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। मतलब वोल्टेज की लाइन आप लॉजिक एनालाइजर से कभी चेक नहीं कर सकते। ओके, कैरी ऑन। Okay, now I'm going to connect logic and oscilloscope together to measure what is the difference between one and one tool. ये Okay, लाइव थोड़ा शेयर कर दीजिए, बंदों को थोड़ा आसानी हो पाएगी टूल चूज करने में, कि कौन सा टूल उनको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी है, जो भी बंदों की चॉइस है, थोड़ा लाइव शेयर कर दीजिए, किसी का बेनिफिट हो सकता है इससे। resolution, alta resolution. Okay, we can see, sorry, change. We can see small noise because have many wires crossing, maybe make a disturb the signal, but no it's important. Only need to understand one division in oscilloscope, 1 volt per division. We move this channel for, okay, sorry, I go to see 0 volt, you see, 0 volt, Yeah. 0 volt to up. Now we can add the meter. You can see here, oh sorry, it's touch. Okay, touch lock. Okay, now I can touch, no problem. You can see now, bad quality. You can see here good number, Yeah, mostly okay. 3.5, 3.5, 3.5 3.7, volts. 3.5. Yeah, because Yes, have noise, the signal have noise because yes, yes, bad yes. connection, but no problem. You can see Okay. now this voltage, and in logic, go to move, remove touch, go to move logic, the same meter. Maybe here, no, here, okay, it's the same. Okay, now Okay, you can so see. okay, 1 second. अगर आप देख सकते हो, देखो लॉजिक एनालाइजर का जो वेव है प्लस आपका एनालॉग चैनल का जो वेव है, उन दोनों का रेफरेंस हमने सेम लेवल पे रखा है। I डीसी change सप्लाई है now. 3 पॉइंट I वन change now the voltage. सेकंड Check. वन सेकंड Okay, वन सेकंड वन sorry, सेकंड लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, sorry. आफ्टर दैट यू Okay, चेंज, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। okay. ओके, देखो, आप यहाँ देखो कि लॉजिक का और एनालॉग चैनल का रेफरेंस एक जगह है, मतलब जीरो एक जगह हमने ली है, ठीक है। वोल्टेज कितनी आ रही है? वोल्टेज आ रही है डीसी सप्लाई से 3.5 समथिंग, ठीक। और लॉजिक वाली प्रोब सिर्फ आपको वन डिवीजन दिखा रही है, मतलब लॉजिक एनालाइजर कह रहा है कि लाइन में वोल्टेज 1 वोल्ट आ रही है, जबकि येलो लाइन जो कि एनालॉग चैनल है वो आपको दिखा रहा है कि 3.5 डिवीजन है। 3.5 डिवीजन का मतलब एक डिवीजन की वैल्यू 1 वोल्ट है। तो ये येलो सिग्नल आपको दिखा रहा है कि वोल्टेज 1 वोल्ट नहीं आ रही, 3.5 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पे एक आपको डिफरेंस नोटिस हो रहा है कि लॉजिक आपको वोल्टेज नहीं चेक करके दिखा सकता। ओके, कैरी ऑन। Okay, I remove the codec for no see more graphics. You now see ओके, start in the same, oh, blocked touch, no move. Okay, check. Now we can see the same meter in the start condition, okay? But now यस, you see this high level, I go to move the voltage in the power supply, and you see the oscilloscope change. But यस, check now, what happened? I have 500 millivolts. Now, logic analyzer no detect the signal because I need move in logic. What is the level? Oh, check. देखो, Before we make a settings for 2.5. 0 volt. Okay, go to write this 1.2, 1.2. 1.2 I इज go ओके। to increase.
1 point now you see, but now the real voltage is 2.5 volt. Go to तो move. अगर आप देखो रियल वोल्टेज अभी जो आ रही है डीसी सप्लाई से वो 2 पॉइंट Go समथिंग to है, move ठीक है। 1.2. लेकिन लॉजिक आपको क्या दिखा रहा है? लॉजिक आपको दिखा रहा है कि 1 वोल्ट है। आप वेरिएशन देख पा रहे हो येलो में, क्यों देख पा रहे हो? वो एक Check, एनालॉग check, चैनल check, है। check. This is good info. Check. Now we have 1 volt. Okay, only 1 volt. But check now the difference. Logic now as in the cross line between the high voltage for working and low voltage for power off. And the logic analyzer shows you transmission data. But now we no connect transmission data. Now only connect voltage. तो जैसा कि आप देख सकते हो लॉजिक एनालाइजर आपको क्या दिखा रहा है। अगर आपने कभी यूज किया है तो आपको ये वेव शेप देख के ऐसा लगेगा कि कुछ डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कुछ कम्युनिकेट नहीं हो रहा क्योंकि लाइन ही वोल्टेज की है। यहाँ पे 1 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। आपको येलो चैनल में बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है कि नॉइस है, बस नॉइस है, जीरो नहीं जा रही, हल्की फुल्की नॉइस आ रही है लाइन में। लेकिन लॉजिक एनालाइजर क्या कह रहा है? लॉजिक एनालाइजर कह रहा है कि नहीं, ये डाटा की या Check, क्लॉक आपकी ट्रांजैक्शन check हो what रही है happened. इसमें। Check what happened. You can see logic analyzer show you data. Why show यस, you data if no have data? It's only voltage. Because logic analyzer no can show you uh, measures with only voltage or frequencies or any other different measure different to digital. Now we cross check. I increase the voltage again. Now have 1 volt. Go to see 1 volt, 1.1. Now you see the signal. ओके। Now the अभी signal, no transmission data. Go to the increase सिर्फ to decrease. 200 मिली वोल्ट इंक्रीज किए हैं। ज्यादातर आपको डाटा कम्युनिकेशन जैसा सिग्नल बंद हो गया है, हल्का फुल्का सा दिख रहा है कभी भी, Now क्योंकि you लॉजिक check. हम Now I change the voltage again. Check. 900 millivolts. And now you see in logic what happened with this signal. Now देखो change the polarity. लॉजिक एनालाइजर ने क्या क्या किया, 900 मिली वोल्ट को कैसे दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि वोल्टेज पल्सिस में आ रही है, जबकि वोल्टेज पल्सिस में नहीं आ रही। वोल्टेज तो 0.9 वोल्ट स्टेबल आ रही है, हल्की फुल्की उसमें नॉइस है। आपको येलो चैनल में दिख रही है साफ सुथरी कि हाँ वोल्टेज क्या आ रही क्या नहीं आ रही। वोल्टेज उन्होंने और इंक्रीज करी है, वेव शेप ऊपर जा रही है। Now we have 2.6 volts. And the voltage in logic is only high level, but no increase. All time show you the same level. Because we make a settings in logic for what is the size for the graphic. Yes, check. Now we select large. If we change to medium, you see now the signal more small. Now no is 1 square per division. We go to large again. एक्चुअली जो वोल्टेज पीछे से आ रही है डीसी सप्लाई से वो 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन लॉजिक आपको नहीं दिखा रहा कि 2 पॉइंट समथिंग है। तो वोल्टेज वगैरह आप कभी भी लॉजिक से चेक नहीं कर सकते हो। Okay, now I only need ask. You can use logic analyzer for measure voltage, switching, current, noise, leak, short. No can do because logic only can show you 0, 1, 0, 1, 0, 1 state, digital states. लॉजिक एनालाइजर जो है सिर्फ आपको 0101 दिखा सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन दिखा सकता है। आपको कोई वोल्टेज की लाइन चेक करनी है, उसमें आपको चेक करना है कि वोल्टेज में रिपल्स तो ज्यादा नहीं आ रहे, जहाँ प्योर डीसी है या नहीं है, लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं, लाइन ड्रॉप तो नहीं हो रही, लाइन एक बार हाई जाके लो तो नहीं आ रही, लाइन स्टेबल है या नहीं है। आप
नहीं चेक कर सकते। किससे? लॉजिक से। किससे चेक हो सकता है? सिर्फ एनालॉग चैनल से। एनालॉग चैनल का मेरा मतलब है ऑसिलोस्कोप से। Okay, now you see this is high price, high quality tool. This no is cheaper. This is high quality. It's the most high quality in Logic Pro because this Logic Pro you can connect to most important tool for engineers, for repair, for anything. This is cheaper tool. Maybe this tool can cost maybe थ्री $20 फोर or डॉलर्स नो yeah, नो okay, थ्री more cheaper. You फोर see, फाइव डॉलर्स 3 to 5. Okay, what happened in your mind if you think this cheaper tool can measure the same this big tool and high price? Why? If you only need to understand this, if the companies know is donkey, the companies is smart. If you think one company make inversion for make a different tools. The business for this company is selling tools. What is the benefit for add this cheaper price to another big tool and no do better only this and no make a oscilloscope? Oh, it's crazy. If the people don't understand this in this moment, you need think. Oh, what is the function for this tool and the another tool? All tools is good for work and for repair, but the problem is many technicians not think what is the way for use the tool. Only copy and follow other people when the people say this is the best tool. Oh, I go to buy this tool. Ah, no repair, but this is good. Ah, you go to buy many, but no solve, no solve, no solve. The problem I feel in the problem. The problem is this tool no need knowledge. Only need you connect and read. The same when you take one bottle for drink water. What you need do for drink this water? Only go to buy, open and drink. No need nothing. But the oscilloscope need time because you can measure many lines. All lines you can measure with oscilloscope. Digital, analog, transmission, box, current, wherever signal you can measure with oscilloscope. But we show you now what is the difference between this small tool and oscilloscope. Oscilloscope can detect problems for you, can understand more easy what is the problem or what is the way or the place or the IC no work. No all in the PCB is only digital signals. You can see my post the last week. I repaired one iPhone 13 Pro Max problem in PCIe. I measure in multimeter, all value is good, voltage is good, diode mode is good. But when I go to measure transmission between NAND and CPU, no transmission, NAND to CPU, but go to measure other lines and NAND transmission. What is the problem? The problem is bad connection in the capacitor. But if you connect in this place one logic analyzer, remember PCIe need new protocol. You can go to buy one logic analyzer for the code PCIe. Yes, you can go to buy, but only see if have volt, because when have a low voltage, you need make a setting. You need understand more for use this tool. And now for repair, you need repair fast. You only connect your oscilloscope in roll mode if you want, or if you like use JT transmission in the screen. In different time, you only connect the measure point in the component, and you see if transmission or if have transmission or not have transmission, and you can understand what is the problem. The problem come from one IC, the problem come from one CPU, or maybe need make a swap for solve the problem. But the problem no is do swap, no is touch the CPU. The problem no is in the CPU. The problem comes from one passive component. Sometimes we feeling need a repair fast, but no take a time for measure. Only go to see media and go to search what is the image for, can help me, maybe have the magic solution for me. I go to do this draw, this painting, this PDF, and not solve. What is my next step? If not solve this, you make a swap.
But when you make a swap, sometimes no solve. You remember in India, have one phone, iPhone 12 Pro Max, with panic watchdog. The problem come from CPU. It's I2C1 SMC. You can see in the panic screen, you can read watchdog, SDA, as a sensor, one sensor, and you can go to replace, make a swap, and no solve. Why? Because the problem come from CPU. If you don't understand this problem, when you go to connect this tool, you don't understand what is the place for connect. Because I see many people talk about this tool, but not solve nothing with this tool. Only connect to see good phone. I see many posts in the night. I go to see the posts in many people show this tool for connecting one good phone. Okay, one good phone you can decode anything, but how you use this for repair? You can use this for repair. Yes, you can use, but it's the same knowledge you need for use this to use this oscilloscope. Why? Because you need to understand what is the place for connect this for this tool, and you need to understand what is the place to connect oscilloscope in this place. All is the same. All the tools need make parameters and settings. These need settings. You can see now, I change the settings in the tool. In oscilloscope, the same. The difference is you don't understand what is the place or what is the moment for you connect this tool or connect the other tool. This is a big problem. ओके, देखो टूल कोई भी बुरा नहीं है, सारे टूल अच्छे हैं, लेकिन आपको एक चीज समझनी चाहिए। फोन में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम नहीं आती है, फोन में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फोन में अगर आप आईफोन की बात करो तो कई बार आपको बग की कॉइल्स चेक करनी होती है। बग की कॉइल्स चेक करने में बिल्कुल भी आपको स्पेस नहीं मिलती। अगर आप नीडल भी लगाओगे ना आपकी प्रोब पे, मल्टीमीटर की प्रोब पे, तो भी आप बग की कॉइल तोड़ लोगे। आपने ये कभी नोटिस किया होगा, ठीक है। ओसिलोस्कोप से आपको क्या करना है, बग की कॉइल के ऊपर रखना है प्रोब, और स्कोप से आप चेक कर सकते हो। आप लॉजिक एनालाइजर से ये कभी भी चेक नहीं कर सकते। आप ट्राई करना। समस्या पता क्या है, समस्या ये है कि जो बंदे ये बोल रहे हैं कि डीएसओ सही नहीं है, लॉजिक सही है, वहां पे एक दिक्कत है, उन्होंने लॉजिक भी यूज नहीं किया। आप चेक करो, उनकी कोई भी लॉजिक से आपको वीडियो नहीं मिलेगी। एक होता है ना, अब हम कह रहे हैं कि भाई डीएसओ अच्छा है, तो आप चेक करो कितने सारे फोन्स हमने डीएसओ से रिपेयर करके बनाए, ठीक है जी। तो जो बंदा ये बोल रहा है कि डीएसओ की जरूरत नहीं है, लॉजिक अच्छा है, उनका कोई वीडियो है जिसमें उन्होंने दिखाया हो कि लॉजिक की मदद से ये मैंने रिपेयर कर दिया? देखो, आप एक डिफरेंस और समझो। एक वीडियो मैंने डाली थी डीएसओ के बारे में, जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि इस प्रोब से आप वोल्टेज जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इस प्रोब से आप टाइम जूम इन जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से स्क्रोलिंग होगी वर्टिकली और हॉरिजेंटली, ट्रिगर ऐसे सेट होता है, ठीक है। ये चीज मैंने बताई है, ये कुछ नया नहीं है, ये काफी पुरानी वीडियो है। लेकिन क्या वो मेरी वीडियो देख के आपने ओसिलोस्कोप चलाना सीख लिया? आपने कोई फॉल्ट रिपेयर कर लिया? सेम ही रिगॉल के या बाकियों के मैनुअल है। तजुर्बा एक अलग चीज होती है, मैनुअल एक अलग चीज होती है। देखो, आप किसी की वीडियो शेयर कर सकते हो कि रिगॉल ने ये बताया, इस बटन का ये मतलब है, ठीक है, समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सही मायने में उसको यूज करो टूल को, और रिपेयर करके दिखाओ कि रिपेयर हुआ। जितने भी बंदे मैं देख रहा हूं जो लॉजिक को अच्छा बोल रहे हैं, लॉजिक बुरा नहीं है, लेकिन आपको पहले लॉजिक वर्ड का मतलब समझना चाहिए। लॉजिक की एक सीमा है, लॉजिक सिर्फ जीरोज एंड वंस डिटेक्ट करेगा, वो डिकोड करके दिखा सकता है, कोई समस्या नहीं है, डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि लॉजिक डिकोड नहीं करता है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि बंदों ने ना तो लॉजिक चलाया है ना डीएसओ चलाया है। और दूसरी बात, आप किसी लाइन को चेक क्यों करते हो, वोल्टेज क्यों चेक करते हो? आप वेरिएशन देखना चाह रहे, आप देखना चाह रहे वहां वोल्टेज का लेवल क्या है। आप मल्टीमीटर से भी वोल्टेज चेक करते हो। मान लो आपने वीपीएच पे या किसी 1.8 की लाइन पे, 2.8 की लाइन पे आपने मल्टीमीटर प्रोब किया, आप चेक करना चाह रहे हो कि इस लाइन में कितनी वोल्टेज आ रही है, 1.8 होनी चाहिए है कि नहीं। लॉजिक तो नहीं बताएगा। लॉजिक में तो जितना आपने उसको कमांड कर दिया कि ये प्रोटोकॉल जो मैं यूज कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, वो 1.2 का है, 2.8 का है,
3 पॉइंट समथिंग का है, वो तो सिर्फ वही लेवल एक आपको दिखाएगा अगर उसको वोल्टेज मिलती है, लेकिन वोल्टेज का लेवल हाई है, लो है, वो आपको सर कुछ दिखाने वाला नहीं है, ना कोई कॉइल उससे चेक होने वाली है। ठीक है, पीसीआई की कम्युनिकेशन अगर आपको डिकोड करनी है या चेक करनी है, लॉजिक आपको बहुत हाई लेवल का लेना पड़ेगा, 300 वाला कभी काम नहीं आता। और कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो थोड़ा एनालॉग टाइप चलते हैं, वहां फिर आपको समस्या आ जाएगी। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं, सिर्फ आपको देखना है कम्युनिकेशन हो रही नहीं हो रही, कितना टाइम हो रही, कब स्टॉप हो जा रहा। अब एक मेरा देखा हुआ केस मैं आपको बोलता हूँ। इस क्लास में एक फोन था भाई के पास, पैनिक दे रहा था, ठीक है, I2C का। उसमें अगर आप उसको स्वैप करते, वो फोन नहीं चलता। हमने उसको स्वैप नहीं किया, हमने डीएसओ से चेक किया, वहां पता चला कि I2C की क्लॉक और डाटा की लाइन में से एक लाइन पे पैटर्न ही नॉर्मल नहीं बन रहा जैसा कि बनना चाहिए। तो सिंपल कंक्लूजन है, उसका सीपीयू फॉल्टी है। अगर आप स्वैप भी कर दोगे तो चलने वाला नहीं है, लेकिन वो चीज सर आप लॉजिक से चेक नहीं कर सकते हो। लॉजिक आपको जीरोज एंड हाईज दिखा रहा है, लोज दिखा रहा है। समस्या पता क्या है? समस्या यहाँ है कि सारे बंदे अभी तक बातें कर रहे हैं। आप सर उसको यूज करो, आप रिजल्ट सामने लेके आओ, आप उससे चेक करके दिखाओ कि मैंने ये चेक किया, यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आपको क्लियर होगा। इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, टूल सारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टूल चलाने से पहले आपको जानकारी चाहिए। आप सिर्फ मैनुअल रीड करके या किसी कंपनी की वीडियो देख के बता दे रहे हो बटन ऐसे घूमते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब एक्यूरेट है। लेकिन टूल आप क्यों बाय कर रहे हो? रिपेयर के लिए। कुछ रिपेयर तो करके दिखाओ उससे। जब आप रिपेयर करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वाकई ही जो डीएसओ कर सकता है, लॉजिक वो नहीं कर सकता। लॉजिक किस काम के लिए है? लॉजिक वोल्टेज को चेक करने के लिए, प्रोटोकॉल्स को चेक करने के लिए। आप बहुत सारी चीजें हैं जो लॉजिक से आप कभी भी चेक नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अभी कॉइल चेक करने जा रहे हैं, ये देखना जरा। या कैरी ऑन। Okay, I make a short in my PCB. When I move, I make a short. Okay, I can repair it after. Make a short. I show you, maybe in video can see before. I show you here the coil, but या I move यस, and make a short in my PCB. It's from या मे a customer. बी टू प्रो पॉइंट्स Yeah, कनेक्टेड विद ईच maybe, अदर। but या now it's hot. Okay, I can repair ओके, after. But ओके, ओके भाई। later, sorry. Okay, what is the method for this tool? We need to understand. We are technicians. We all time need repair fast. We all time need search one different way for repair, more easy, more fast, no lose time, no lose money, have more benefits. But many times we no focus in what is the tool for repair because we only follow the people. We only follow one famous teacher, one famous school, one famous company. But all time when you have this news, you need to stop and think this. If the companies can use oscilloscope, spectrum analyzer, logic analyzer, multimeters, whatever tool, you need to stop and think what is the function for this tool, why I need use new tool different to another tool because many times we are lost in the way for repair because we only focus and measure one point and can't solve any problem. But this tool no exist. The best tool in the this is your best tool. You need use this tool or can use any tool with your hands. If you don't understand this, you know, focus in study and increase your knowledge and go for more info. You all time do the same, and now you only feeling that when you start for repair phones, your first revaling. When you do your first revaling, you are very happy. You are the most important man around the world. You can solve anything because now you have power for make a revaling. But later you need to understand how measure in multimeter. Okay, now you can measure in multimeter. Now you have more knowledge, you have more power. Later, you practice, but not solve all. No can detect all problems. No can detect all damage. Only can detect
when have a short because heating. This component make a high temperature and your finger, this is the problem. Replace and work. Many times work, but many times no work. You replace this component, remove, and the short continue. And you know think what is the other way for measure this problem. You only go to inject voltage. Remember some famous tool, short killer? Many technicians शॉर्ट किलर। around the world damage and broken CPUs because यस। go to inject short killer to lines from CPU and CPU exploit and damage. In this moment, you need to stop and think, my problem no is the tool. My problem is my knowledge for understand what is the place for can use this tool. If you go to inject 4, 5, 10, 12 voltage to one CPU damage, if you inject to PMU 19 volts, the PMU broken because block this voltage and stop the work. Many problems in this job is because many people like bright. Many people only find money, but this no is the matter. The matter no is find money. The matter is teach the people with good info, good knowledge, can make us smart technicians. No technicians for copy. Copy paste not the solution. I have in this business 26 years ago. I started 26 years ago, and I can see many different forms for work. I work in many different work in this time. I work without the electronic. I work only for good luck, only for can measure short. I transit in all these ways. I know these ways, but I know this is the new era. We have all time new phones. We all time have new problems, and now we can measure any problem without open the PCBs. Many times it's closed, the new models, and you need open, and maybe when you open and close, no work again, or have other problem, because you need first understand what is the problem, what is the start condition for this problem and this damage. When you understand this, you can choose what is your best tool in your lab. Sometimes you have oscilloscope, sometimes you have multimeter, sometimes you have another tool, a Chinese tool, good tool. The tool no is bad. It's bad how you use this tool. Many times you don't understand what is the function for this tool. ओके, सबसे अहम क्या है? सबसे अहम है आपकी जानकारी, आपका दिमाग। टूल आप कोई भी यूज करना चाह रहे हो, बाय करना चाह रहे हो, उस टूल को यूज करने से पहले, बाय करने से पहले आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मल्टीमीटर का भी प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट किलर का प्रॉपर यूज नहीं हो सकता। तो नेचुरल सी बात है, लॉजिक एनालाइजर या डीएसओ तो वो बहुत की दूर की बातें हैं। नॉलेज अगर नहीं है तो नॉलेज होना सबसे ज्यादा अहम है। अब जैसे एग्जांपल की बात, इन्होंने भी जैसे शॉर्ट किलर की बात करी, तो मेरे को भी बंदे का मैसेज आया एक का, बोला मेरे केस में सीपीयू शॉर्ट है। मैंने कहा भी तेरे को कैसे पता सीपीयू शॉर्ट है? वो बोल रहा है कि मैं सीपीयू की लाइन पे 3 वोल्ट दे रहा हूँ तो सीपीयू गर्म हो रहा है। अब वो 1.2 वोल्ट की लाइन पे 3 वोल्ट दे के चेक कर रहे हैं, तो सीपीयू गर्म होगा क्यों नहीं होगा? 100% होगा। अब उनको ये नहीं पता है कि कौन सी लाइन पे कितने वोल्ट आपको इंजेक्ट करने हैं। तो ये टूल का दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ शॉर्ट किलर में नहीं है, दिक्कत है यहाँ नॉलेज में। अगर आपको पता रहता कि यहाँ 1.2 की लाइन है, यहाँ 3 वोल्ट इंजेक्ट नहीं करने, तो कोई इशू नहीं था, नॉर्मल रहता सब। अब 3 वोल्ट उन्हें इंजेक्ट किए, तो अगर वो पहले से शॉर्ट नहीं भी था तो अब 100% शॉर्ट होने वाला है। तो मामला यहाँ किसी टूल का नहीं है, मामला है यहाँ जानकारी का, आपकी नॉलेज का। अब कोई बंदा रिपेयरिंग स्टार्ट करता है, उसको रिवॉल्विंग नहीं आती, तो रिवॉल्विंग जब वो सीखता है तो उसको बहुत खुशी होती है। नेचुरल सी बात है, उसको लगता है मैं सब कर लूंगा। अब वो बहुत कुछ कर भी लेता है, लेकिन एक दिन वो देखता है कि रिवॉल्विंग से अब मामला सॉल्व नहीं हो रहा, फोन रिपेयर नहीं हुआ। फिर उसको इच्छा होती है कि नहीं अब और आगे जाना जाए, कि रिवॉल्विंग से भी अगर चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हो। तो नेचुरल सी बात है, वो मल्टीमीटर वगैरह चलाना कहीं ना कहीं से सीखेगा, या उसको सीखना चाहिए। मल्टीमीटर
भी तभी चला सकता है अगर उसको स्केमेटिक्स की जानकारी है, उसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है। चलो एक दिन उसने मल्टीमीटर चलाना भी सीख लिया, अब वो क्या पा रहा है कि रिवॉल्व कर लिया, नहीं चला, मल्टीमीटर से चेकिंग कर रहे हैं, सब उसको नॉर्मल मिल रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर की अपनी एक सीमा है। मल्टीमीटर का रिफ्रेश रेट बहुत कम है। स्कोप में एक आपको वर्ड मिलता है गीगा सैंपलिंग, ठीक है, मतलब एक सेकंड के अंदर वो कितने सैंपल लेता है किसी सिग्नल के, आप इसको मल्टीमीटर से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मल्टीमीटर का तो रिफ्रेश रेट कुछ भी नहीं है। डीएसओ का या डीएचओ का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है गीगाज में, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन मल्टीमीटर इसका मतलब ये नहीं है फजूल है, मल्टीमीटर अच्छा है, अपनी जगह अच्छा है, लेकिन जब मल्टीमीटर से बात नहीं बनती, अब आपके मन में आता है कि अब क्या, फोन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये अहम नहीं है, लेकिन आपको एक जवाब जानना है कि नहीं चल रहा, मुझे पता तो चले क्यों नहीं चल रहा। तो डीएसओ से आपको वो पता चल सकता है, लेकिन शर्त ये है आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये टूल का एक्चुअल यूज होगा कैसे। चलिए ये देखिए। ओके, You can see कैरी ऑन। I repair this phone easy. या गुड। Okay. Now you see the oscilloscope can show you when work one coil, only simple coil, no it's amazing coil, a फर्स्ट different यू coil. शो देम वेयर यू आर प्रोबिंग, ओके, Okay, I show you. बिकॉज Check. पीपल I डोंट नो only दिस। only touch the coil in the cover of the cover. ओके, It's a coil ferrite coil. The problem is the camera resolution. या ओके, आई विल टेल देम, नो But इशू। एक्चुअली क्या है, ये प्रोब हम किसी जॉइंट पे नहीं लगा रहे, किसी सोल्डरिंग जॉइंट पे नहीं लगा रहे, किसी कॉपर पे ट्रैक पे नहीं लगा रहे। प्रोब कहाँ लगा रहे हैं, ये आपकी कॉइल लगी है, पावर आईसी के चारों तरफ आपकी कॉइल लगी है, बक कॉइल, प्रोब इसके ऊपर रखी गई है वायरलेसली। डीएसओ आपको कॉइल के अंदर जो स्विचिंग हो रही है वो दिखा रहा है। आप ये कभी लॉजिक से चेक करके देखना, आपको पता चलेगा। लेकिन समस्या यहाँ एक और है, अब भले ही डीएसओ आपको यहाँ एक वेव शेप दिखा दे रहा है कॉइल की, ज्यादातर बंदों को ये नहीं पता कि ये जो स्प्रिंग बन रहा है ये अच्छा है बुरा है, इसको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो यहाँ चेक नहीं कर पाएंगे क्या दिक्कत है। अब फिर समस्या वही आ जाती है, अब अपने को जानकारी नहीं है कि ये वेव शेप का मतलब क्या है, तो हमारे लिए फिर यूजलेस हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। आपके लिए बेनिफिट इसका तभी है अगर आपको पता है कि कॉइल पे कैसी वेव शेप बननी चाहिए। ये जो वेव शेप बन रही है, आप, कई बंदे ना इस बात का मजाक उड़ाते हैं, सर डीएसओ से आप शॉर्टिंग तक पकड़ सकते हो, लेकिन आपको समस्या क्या है, समस्या ये है आप चलाते नहीं हो, आप इसके यूज टू नहीं हुए हो, आपको अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है, समस्या यहाँ आके रुकती है। ओके, कैरी ऑन। okay, Habibi, I hope this live can help to many people to understand. Uh, no exists one magic tool. No logic analyzer. No is bad tool. It's different tool. DSO no is the best tool. It's good tool only. Maybe if you in the future have new tools with more power, with more benefits, but now we need to understand the tool no is the problem. I feeling yesterday the problem no is the tool. The problem is the teachers with as teachers. The people no love other teacher teach you when you need to understand some different knowledge, and this is bad because I'm happy when my students can measure in oscilloscope. I'm very happy when my students change your life and change the students to teachers. I'm very happy. I'm happy when the people can have more knowledge for have benefit in your home, and this is the first way for this job. No is competition. No is competition about what is the team with more power. Is what is the team can help more people. We need focus in help the people. Help the people is when you is more benefit for you when you share some info and the people can understand how use this tool, how repair one phone in your home alone. When any other people can help you, you can go to see many videos. I have many videos in the YouTube. I have many videos in Facebook, many posts in Instagram, and you can see and follow whatever teacher you like. But no, it's good. All teachers make a problem with one tool. If this teacher no use this tool, why
some teachers talk about the tool, but no understand the tool, no measure anything with this tool, no use this tool for nothing, no understand how programming, no understand how measure, how he can go to post and fight with the tool if no use. Only we understand this. If some people come with me and ask me, Habibi, what you think about the aerospatial flight, aeroespacial, NASA? I answer, this is bad. No, it's important, no needed. But if you go to ask to some astronaut, astronaut can drive in this machine, can understand what is the function for this machine, and he can sorry, and he can answer you, this tool can do this, can do this, can do this. If I no use, I no can express my idea because I no understand what is the function for this tool. I no understand how driving this tool. I no use this tool. Okay, I no can express my idea because I don't know. If some people ask me, what you think about the beer? And I no drink beer any before. I no can express. All people know I drink beer, but only is expression. We only can express ideas when we have knowledge about this idea. When I use this tool for repair, when I use this tool for study, when we use some tool for understand what is the problem in the PCB, but make a info about that this tool is good, this tool no is good, this tool work, this other tool no work. Many tools, we have many tools in the desk. Save it because no use now. Use maybe 1 year ago, 1 or 2 times, and no use again. And have many money in the box. You can see now. You know me. I buy any tools. Before I use this, now I no use. Before I use this, now I no use. Before I use this, now I no use. Before I use these sockets, remember these sockets? Now I no need. I can connect the oscilloscope without this. Before I use these all tools for measure, now no use. Before I use this, now no use. Before use this, now no use. Many tools, no use now. Why? Because we increase the knowledge all time. We all time practice. I remember when I do my first revolving in CPU, I need magnetic stencil, and I think I need all stencil with magnetic, with diamond. But now I can do any swap, any revolving, any hand skills without any tool, only paper, my twister, stencil, wherever paste, finish, done. Now we don't need these tools. But no is good. Now I tell, this tool is bad. You don't need. No, if you need this tool, you can use. You remember preheater. Preheater is good tool when you start, when you are beginner. When you have experience in your hands, in your eyes, in your hand skills, you can separate boards without preheater. Now for me, preheater is only for show. In all my trainings, the people can see and ask me, Fer, you no use preheaters? No, I no use more preheaters. I no use I bridge now. Before I use, now I no need. But no, it's bad tool. It's only my knowledge in this moment need these tools. When you increase your knowledge, you need only some tools, no need all. All is practice, all is study, all is you file and assert, change, understand. All is different in your life. You need all time increase your knowledge, study. And the tool update with you. For example, I start with oscilloscope 100, old model. I use this analog oscilloscope, this oscilloscope, analog. Before I practice with this, now I don't need this. I need digital because I need decoding data, more details, more time.
I need more. The technicians all time need more. No focus about what tool is good, what tool is bad. You focus what is your benefit for use one tool and use one other tool. If you don't understand oscilloscope, okay, you need practice, you need study. But you no need think, this tool no work for anything. I can show you in all trainings what is the power in oscilloscope. In last training, we repair many phones with oscilloscope. And after this training in other country, the same. In another way, in another trip to Tirupur, India, show the same. Come for us, many equipments working before swap, and we can detect the problem and solve the problem, and the people claim, happy, this is power. Yes, but need practice. All time you need to understand what is the place for connect the oscilloscope, what is the meter you can see, what is the graphic you can see, what is the measure good, the measure bad. You only need to understand this is tool for diagnostic. This is tool for analysis. It's different to voltage. Understand? I talk so much. I speak so much. Sorry. ओके, कहने का मतलब क्या है, देखो स्टार्टिंग में जब आप रिवॉल्विंग स्टार्ट करते हो तो आपको मैग्नेटिक स्टेंसिल से बड़ी सुविधा होती है। आपको उस टाइम लगता है कि नहीं, जितनी भी मुझे रिवॉल्विंग करनी है वो सारी मैग्नेटिक स्टेंसिल आपको चाहिए। लेकिन आप एक दिन सोल्डरिंग स्किल में मास्टरी कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे को किसी मैग्नेटिक स्टेंसिल की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो स्टेंसिल आती है आप उससे भी रिवॉल्व कर लेते हो। स्टार्टिंग में प्री हीटर आप लोग यूज कर रहे थे, अभी आपको पता चल गया है कि भाई प्री हीटर के बिना भी आप एसएमडी से भी बोर्ड सेपरेट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। मामला क्या है, आप सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। पहले आपको मैग्नेटिक स्टेंसिल की जरूरत पड़ती थी, अब नहीं पड़ती, तो अभी क्या कहोगे, मैग्नेटिक स्टेंसिल घटिया है? नहीं, घटिया नहीं है। उस टाइम आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपके लिए बहुत अच्छी थी। आज किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक, सेम आप इसके बारे में भी कह सकते हो, प्री हीटर के बारे में। आज आप प्री हीटर यूज नहीं कर रहे तो वो घटिया हो गया? नहीं, वो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी पहले थी। अभी आपके लिए वो यूजलेस में भी हो गया हो, आप यूज नहीं कर रहे, लेकिन कोई दूसरा बंदा जिसको अभी भी आइडिया नहीं है कि एसएमडी से आप कैसे बोर्ड सेपरेट करोगे या दोबारा कंबाइन करोगे, उसके लिए आज भी प्री हीटर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही आपका डीएसओ भी है। डीएसओ के साथ थोड़ी समस्या क्या रहती है, इसको चलाने के लिए आपको काफी सारा एक्सपीरियंस, नॉलेज होनी चाहिए। नेचुरल सी बात है, कोई भी बंदा, आपने पहले मल्टीमीटर भी चलाया होगा, पहले दिन ही आपको थोड़ी ना समझ आ गया सर मल्टीमीटर कैसे चलता है। नेचुरल सी बात है, नहीं समझ आता। टाइम टाइम टाइम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कोई भी टूल है आपको उसमें मास्टरी करनी पड़ती है। जब एक बार मास्टरी कर लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट दे सकता है आपको। अगर आपको वो टूल चलाना नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है वो टूल यूजलेस है। कोई टूल बेकार नहीं है, सारे टूल अच्छे हैं, लॉजिक भी अच्छा है, लेकिन लॉजिक को ओसिलोस्कोप से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। अब ये सही हो सकता था अगर हम बोलते कि फोन में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम आती है, फोन में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी कोयल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जहां आपको स्विचिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें। अगर आप कहो कि फोन में ऐसी दिक्कतें नहीं आती तो फिर ठीक है, फिर लॉजिक बेस्ट है। लेकिन आप I2C के मुकाबले बाकी लाइनें कितनी ज्यादा चेक करते हो, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है, गलत कुछ नहीं है, सारा कुछ अच्छा है, कोई टूल बुरा नहीं है, कुछ नहीं है। असल में ये दिक्कत थोड़ी सी है टांगे खींचने की। क्लियरली मैं आपको बोलूं, ये टांग खींचने की समस्या है, किसी टूल का कोई लेन देन नहीं है यहाँ। टूल सारे बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको टूल चलाना आता है वो बेस्ट है। अगर आपको कोई टूल चलाना नहीं आता, वो मार्केट में है, दूसरे बंदे उससे अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक, आप उसको सीख सकते हो, दूसरे बंदे ने भी सीखा है, आप भी सीख लोगे, नेचुरल सी बात है, प्रैक्टिस लगती है। कोई बच्चा चलना सीखता है, वो पहले दिन थोड़ी ना भागने लगता है, पहले दिन मिल्खा मिल्खा सिंह नहीं बनेगा वो चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा। अब क्या गिरने की वजह से वो चलना छोड़ देता है? नहीं, वो ट्राई करता है, ट्राई करता है, ट्राई करता है, एक दिन वो चलने भी लग जाता है और भागने भी लग जाता है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, कुछ भी आप जिंदगी में नया कर रहे हो, कोई टूल यूज कर रहे हो, कोई टेक्निक है, कुछ भी है, उसमें आपको टाइम लगता है। अगर आप उसको टाइम दोगे तो आपको पता चलेगा। समस्या यहाँ थोड़ी ये है कि बिना यूज किए, बिना यूज किए किसी चीज के बारे में आप अपनी राय
दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मना तो कोई आपको नहीं कर सकता, लेकिन वो राय गलत हो जाएगी। जो सामने वाला बंदा है, जो आप पे यकीन करता है, वो आपको सुनता है, मे बी उसके लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंस हो, आपकी बातों की बड़ी इंपॉर्टेंस हो, लेकिन जाने अनजाने में आपने उस बंदे को गलत गाइड कर दिया। क्यों? जब तक आप किसी चीज को चेक नहीं कर, देखो यार, मुझे कई बंदे मैसेज करते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कल एक बंदे ने मैसेज किया, जेटैग का भी कुछ रेट कम हुआ है, तो किसी पंजाबी होलसेलर से वो बाय करना चाह रहा था। मैं उस बंदे को नहीं जानता, मुझे उसने पूछा मैं इससे खरीद लूं, सही है। अब मैं कैसे कहूँ सही है? देखो, ना मैं यहाँ अच्छा कह सकता हूँ, ना मैं यहाँ बुरा कह सकता हूँ। अच्छा मैं इसलिए नहीं कह सकता, मैं बंदे को जानता नहीं हूँ। बुरा कहना भी मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बंदे को जानता नहीं हूँ। जब मैं उसको जानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे डिसीजन दे दूं कि ये अच्छा है कि बुरा है? ये सेम कई बार ट्रेनर्स के साथ होती है। वहां चला जाऊं, मैंने कहा भी तेरी चॉइस है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को उसको कोई अच्छा कहने का भी हक नहीं है, बुरा कहने का भी हक नहीं है। क्यों? ना तो मैंने वहां से ट्रेनिंग ली है, ना वो मेरा यार दोस्त है, ना मैं उससे बातें करता हूँ, मुझे क्या पता वो बुरा के अच्छा। मैं कैसे कहूँ? मैं नहीं कह सकता। तो नेचुरल सी बात है, जब तक आप किसी चीज को अच्छे से यूज नहीं कर लेते हो, किसी चीज को अच्छे से यूज नहीं कर लेते हो, तब तक आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आपको ये चीज थोड़ी समझनी चाहिए। बाकी जो बंदे कुछ भी खरीदना चाह रहे, उनको ये चीज समझनी चाहिए, क्या नतीजा सिर्फ बातें करने से निकल जाता है? आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने वोट करी, किसी पॉलिटिशियन को वोट करी, ठीक है। वोट करने से पहले आपने नोटिस किया कि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, कि स्कूल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन बाद में आपने पाया कि नहीं, सारी बातें ही थी, असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो नेचुरल सी बात है, अगली बार आप वोट नहीं करोगे। दूसरी तरफ आपने एक बंदे को वोट किया, उसने जो कहा वो कह के करके भी दिखाया, तो नेचुरल सी बात है, अगली बार भी आप उसको वोट करोगे। तो कहने का मतलब क्या है? बात सिर्फ जुबान की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि जो हम लोग बोल रहे हैं, क्या वो असल में काम आ रहा है प्रैक्टिकली। अगर हम कह रहे हैं डीएसओ अच्छा है, क्या हमने कुछ उससे करके दिखाया? कुछ हमारी वीडियोस वगैरह हैं, आप चेक कर सकते हो हैं कि नहीं। अगर हम कहें कि नहीं जी, लॉजिक एनालाइजर ही अच्छा है, डीएसओ घटिया है, तो क्या वहां कोई कंपैरिजन की वीडियो है जिसमें आपने दिखाया हो कि डीएसओ यहाँ फेल हो गया, डीएसओ यहाँ कामयाब नहीं है, लॉजिक ने अच्छा काम कर दिया? कोई प्रूफ? कहने का क्या है, कोई कुछ कह देगा। कहने में कोई समस्या नहीं है। समस्या होती है जो सामने भोली भाली जनता बैठी है, उनके साथ समस्या है। अब डीएसओ भी कई बंदे कह देते हैं भाई यूनिट का ले ले, सस्ता है। अब आप यूनिट का ले लोगे, 18-20 हजार का है, लेकिन सर आप उसके साथ डिकोडिंग नहीं कर सकते, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप उसके साथ चेक नहीं कर सकते। तो आपको रिवॉल्व के साथ जाना चाहिए। भले आप 50 मेगाहर्ट्ज के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यूनिट का 50 की जगह 100 मिल रहा था सस्ते में, रिगॉल आपको 50 ही मिल रहा है, थोड़ा कॉस्टली है, तो भी आपको रिगॉल के साथ जाना चाहिए। लेकिन आपको पहले सोचना समझना चाहिए। दूसरी एक चीज मैं और आपको क्लियर करना चाहूंगा, टूल क्या है। थर्मल है मेरे पास, एक छोड़ो दो है, डीएसओ भी है, लॉजिक भी है। लॉजिक सर मैंने 7-8 साल पहले मंगाया था, मैंने उस पर काफी चीजें देखी, लेकिन मुझे इतना बेनिफिट नहीं लगा। अभी भी कहीं पड़ा है, मैं आपको ढूंढ के दिखा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे टूल ऐसे होते हैं जो आप जिंदगी में बाय करते हो, लेकिन आपको आगे चल के पता चलता है कि नहीं, मेरे इतने काम का नहीं है, तो आप यूज नहीं कर सकते, करते हो, नेचुरल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। टूल का मतलब क्या है? डायग्नोजिंग टूल। डायग्नोजिंग टूल का मतलब ये होता है कि वो आपको फॉल्ट बता रहा है, आपकी मदद कर रहा है ये चेक करने में कि फॉल्ट कहाँ है। सर वो कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि आप कहो कि नहीं, पहले मैं मल्टीमीटर चला रहा था, मेरे से फोन रिपेयर नहीं होते थे, अब मैंने डीएसओ चलाना या लॉजिक चलाना सीख लिया, अब मैं सारे फोन रिपेयर कर दूंगा। ऐसी बेतुकी बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो भले हम है या कोई भी है। मजाक मजाक में आप कह सकते हो कि नहीं जी, ये डीएसओ से चला लो, इससे तो नहीं चलता। सर डीएसओ किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, लॉजिक किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक टूल है। जैसे आपके पथरी है, ठीक है जी, आपने पथरी चेक करवाई, आप अल्ट्रासाउंड से या सीटी स्कैन से पथरी चेक करवाते हो, वो सिर्फ आपको एक्यूरेसी दे सकता है। एक्सरे थोड़ा कम एक्यूरेसी देगा, अल्ट्रासाउंड थोड़ा ज्यादा दे देगा, सीटी स्कैन उससे भी ज्यादा दे देगा। क्या वो पथरी निकल जाएगी उनसे? नहीं निकलेगी। ये वाला जो है ना, थोड़ा ऊपर का पोर्शन आपको प्लीज यूज करना चाहिए अपने लिए। आप
ठीक है, हर एक बंदे की बातें सुनो, बातें सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बंदे की रिस्पेक्ट भी करो, रिस्पेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी किसी का भी टीचर है, वो कैसा भी है, उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको पीछे का थोड़ा सीन चेक करना पड़ेगा। क्या सिर्फ बातें ही हैं, या फिर बातों के साथ आपको कुछ प्रूफ भी मिल रहा है, कोई वीडियो मिल रही है, कितने टाइम से कोई बंदा किसी टूल को यूज कर रहा है, आप थोड़ा चेक करो। जब आप चेक करोगे तब आप ये ढूंढ पाओगे कि यहाँ सिर्फ ओनली बातें ही थी, या फिर वाकई ही किसी बंदे ने कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया भी है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी, हम लोग क्या कहना चाह रहे। समस्या कोई नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, हमारे को तो कोई समस्या नहीं है। ये लाइव बनाने का भी मतलब क्या है, देखो, अगर आप डीएसओ की बात करो, एक नॉर्मल बंदे के लिए वो भी इतना चीप नहीं है, मतलब सस्ता नहीं है, ठीक है। वो भी आपको 30-40 हजार का, 50 हजार का मिलता है। अगर आप लॉजिक की बात करो, अगर तो सर जुगाड़ लेना है, वो 300 रुपए में मिल जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है। हमने ये कंपैरिजन वो 300 वाले से क्यों नहीं दिखाया, ये रिवॉल्व के जो इनबिल्ट है उससे आपको ये कंपैरिजन क्यों दिखाया, ताकि आपको ये समझ आ सके कि जो रिवॉल्व कंपनी ने भी लॉजिक बनाया है, उसकी भी वही सीमा है जो आपके नॉर्मल वाले की है। नॉर्मल वाला तो सर थोड़ी सी यूएसबी हिल गई ना, तो भी आपको ऑसिलेशंस, बोल रहा हूँ सॉरी, डाटा की ट्रांजैक्शंस आपको शो कर देगा। तो आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन करना चाहिए जो भी है। कई बार क्या होता है ना, कोई बंदा हमको पसंद नहीं है, जैसे एग्जांपल जस्ट, कोई बंदा अपने को पसंद नहीं है, जब हम किसी को पसंद नहीं है, तो सामने वाला क्या करता है, अगर आपने उससे कुछ पूछ लिया, वो अपने हाव भाव, अपने निजी पर्सनल हाव भाव उस बात में ऐड कर देगा, जबकि उसने आपको को भी जांचा नहीं है, परखा नहीं है। जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, किसी टूल के बारे में पूछ रहे हो, वो भी उसने कोई एक्सपीरियंस उसका नहीं किया है, सिर्फ बातें ही हैं। क्योंकि सामने वाले का नाम आ गया तो वो कहेगा नहीं नहीं बेकार है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। वैसे तो उनको भी समझनी चाहिए जो सलाह देते हैं, हर एक बंदे को ये समझनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमसे कोई बंदा कुछ पूछ रहा है तो नेचुरल सी बात है, उसके दिमाग में तुम्हारा कुछ लेवल है, कुछ इमेज है, उसने उसने कुछ सोचा है कि ये बंदा मेरे को कुछ अच्छा गाइड कर सकता है, तो वो बंदा इसलिए आपको कुछ पूछ रहा है। तो आपको भी अपनी इमेज डाउन नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से जानकारी है उस चीज की, तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ अच्छा है या बुरा है। अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो आप उसको कह सकते हो कि जी मेरे को इसके बारे में पता नहीं है। अब इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा ही स्टूडेंट है, मे भी शायद लाइव भी देख रहे हो, वो 1 महीने से मेरे को पूछ रहे हैं कि जी थर्मल लेना है। एक थर्मल का मॉडल उन्होंने भेजा, वही थर्मल मेरे पास भी है, वो मेरे को 1 महीने से पूछ रहा है अच्छा है ले लूं। अब मैं उसको 1 महीने से कुछ नहीं बोला कि अच्छा है कि नहीं, मैंने उसको बोला वेट करो। क्यों? महीने से मेरे पास थर्मल तो पड़ा है, वो थर्मल यूज करने का मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे पता नहीं है वो कितनी मिनिमम शॉटिंग पकड़ता है, कितनी एक्यूरेसी है उसकी, कितना अच्छे से काम करता है। अब जब मैंने चेक ही नहीं किया, मैं कैसे कह दूं कि अच्छा है। मैं ले आया, लेने की चक्कर नहीं है, आप कुछ भी बाय कर लेते हो, लेकिन सर जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तब कुछ चीजों का आपको पता चलता है कि नहीं इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड हो गया, जा में भी बहुत बुरा है, ये भी अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है, बात रुकी है हर एक चीज यूज करने पे। जिसके बारे में भी हम कमेंट कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, उसको पहले यूज करो, तब जाके आप उसके बारे में कोई नतीजा निकालो। ओके, मे भी लंबा हो रहा है, फिर यू वांट टू से समथिंग? No, you say all. नो नो, Oh, एक्चुअली ओके। okay, Javis, I hope this info can help you. For you can choose what is the best tool for you. Maybe sometimes your best tool is multimeter. Maybe your best tool is oscilloscope or logic analyzer as you like. You can choose anything, but you need to understand what is the matter for you choose what is the best tool for you, not for me. I can use now I can use oscilloscope, but before no use. Now I can use spectrum analyzer before no use. Okay, if you can use new tools or more high tools, it's good. You know, focus in go to see back. You go to see the new, future, the future for you. I hope this info can help you. Now we show what is the difference between logic analyzer and oscilloscope. You see the वन थिंग आई methods, वांट टू ऐड हियर, वन थिंग। okay? मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो बंदे हमारी वीडियोस देखते हैं ना, एक वीडियो है कुछ पुरानी, मे भी शायद साल
जहाँ उससे ज्यादा पुरानी है। उसमें भी मेरे पास रिगॉल का लॉजिक ये था, आपका डीएसओ था। तो उसमें ना क्लास में मैं कुछ करवा रहा था, तो उस टाइम मेरे को डिकोडिंग की जानकारी नहीं थी। जिस चीज की नहीं थी जानकारी, तो बोलने में क्या है, झूठ बोलने का वो मतलब नहीं है। जानकारी नहीं थी तो कुत्ता भौंकने लगा पीछे से, सच्ची घटना है। तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में स्टूडेंट्स को पूछा, आपको ये समझ आ रहा है ये क्या बोल रहा है? कुत्ता भौंक रहा था, तो मैंने उनको पूछा समझ आ रहा है? बोले नहीं, हमको कैसे समझ आएगा कि कुत्ता क्या भौंक रहा है। तो मैं उनको यही बोला, मैंने कहा जब आपको पता नहीं है कि भाई डिकोडिंग कैसे करनी है, तो आपके लिए यूजलेस हो गया, आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन फेयर से मिलने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो मुझे क्लियर नहीं थी, तो मुझे जाके समझ आया कि नहीं, ये चीजें मेरी जानकारी में नहीं थी, तो मुझे वो चीज यूजलेस लग रही थी। एक बंदे की एक हल्की सी गाइडलाइन से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, वही चीज मेरे लिए यूजफुल हो गई। बात समझ रहे हो? ये मैं अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। आप वीडियो भी चेक कर सकते हो, काफी बंदों ने वो देख भी रखी होगी। डीएसओ मेरे पास था, उससे पहले मेरे पास यूनिट वाला था, 50 वाला। उसके बाद रिगॉल वाला था, जो अभी 1104 अभी सबने लिया है, ये 2 साल से है मेरे पास। लेकिन क्योंकि मेरे को डिकोडिंग करनी नहीं आती थी, तो मुझे ये यूजलेस लग रहा था, तो मैंने ये किस काम के लिए रख रखा था, डिकोडिंग नहीं करता था। बाकी सारे मैं यहाँ से सिग्नलिंग वगैरह, आपके क्लॉक वगैरह नॉर्मल है नहीं, रीसेट वगैरह, ये सब चीजें मैं चेक कर लेता था। एक बंदे की एक गाइडलाइन की वजह से डीएसओ मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया। ये चीज हर एक जगह अप्लाई हो रही है। अगर आपको बंदूक चलानी नहीं आती, बंदूक आपके लिए यूजलेस नहीं हो जाएगी। अगर आपको तलवार चलानी नहीं आती, तलवार आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। अगर आपको कार चलानी नहीं आती, कार आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, सही जानकारी बड़ी जरूरी है। मेरी एक आदत है, काफी बंदों ने मुझे बोला था ये चीज, मैं आपको एक और बोलता हूँ। ये बैच शुरू करने से पहले काफी बंदों ने मुझे बोला कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये डीएसओ वीएसओ कुछ नहीं होता, तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा बाहर वाले बंदों के साथ। अब क्योंकि मैं इनके साथ एक तिरपुर में क्लास कर चुका था, तो मैं देख चुका था। अभी मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, बड़े टाइम से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रीड कर रहा हूँ, समझ भी है। आप वीडियोस देखते हो, आपको भी ये चीज की समझ होगी। इतने हम बच्चे नहीं है कि हम सामने वाले को देख के ना पहचान सके कि क्या है क्या नहीं। तो अगर मैं किसी चीज की पुष्टि कर रहा हूँ, तो किसी वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, आप लड़ाई झगड़े के चक्कर में किसी को भी कह सकते हो ये पागल है, ये गधा है, ये अच्छा नहीं है यार, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो एक अलग, बिल्कुल अलग मैटर है। आप गुस्से में किसी को कुछ भी कह सकते हो। अगर आपकी किसी से कुछ नहीं बनता, तो आप कुछ भी कह सकते हो किसी को। वो वो बातें काउंट में आती नहीं है। काउंट में क्या आता है, जो नॉर्मल जिंदगी में चलता है, जो नॉर्मल आप काम करते हो, नॉर्मल आप शो करते हो, जो आपका डाटा है, जो बाकी बंदे देख रहे हैं, नॉर्मल वो चीजें काउंट में आती। ओके, सॉरी, कैरी ऑन। Okay, Javibis, sorry for my broken English. I try all time express my idea, but sometimes not have a dictionary in my mind. I promise study more English and practice more English with my brother Kambir for maybe in the future can explain more best for you. But now I hope this info can help you. Sorry for all your time, lost your time today. Maybe you lost time see when you see this video, but I know remove this video. I'm share this video in Facebook for you can go to see and repeat and repeat and repeat when you like. And I hope can help you and good time. I'm happy for show you what is the difference between one tool and another tool. No for fight, only for share info, real tools, but because you need to understand how work one tool and how work other tool, and you can choose what is your tool favorite. Maybe your favorite tool फेवरेट is टूल। multimeter. Okay, you can use no problem. I use oscilloscope because I love this tool. I love the graphic. I love understand how work the signals. I love understand or can try sometimes can try and understand how work. Sometimes no understand nothing. Only see graphic. But it's good for me because I learn about the signals all time, and I hope you have benefit. You have benefit from this life, and I promise make more videos in YouTube. Can be now teach me how I connect my laptop to OBS and transmission, make a transmission. But my problem is the internet in my office. I replace my internet maybe the next week,
and can make our lives more continuous for share info. With all cameras now, we preparing good view for you, but my internet is very bad. Only for update the info is very slow. But I promise No replace issues. my We will internet update this also. and can show many Upgrade. cameras, many photos, many videos for you in the live. And maybe can start to repair in the live, no problem, and show the people how repair with oscilloscope free. Many people talk about we share all free but no share nothing. We promise share, we promise we do share, and in the future we share more info for you. I hope this Okay. info is good. ओके ओके। Yeah, thank you ये for everything. टाइम, वेट Uh, वेट वेट, ये Okay. टाइम लॉस्ट नहीं हुआ है। आप लोग देखो, जनता सब जानती है, आप बहुत समझदार हो, आपको चीजें समझ आती है। एक चीज आप नोटिस करो, काफी बंदे जैसे यहाँ भी बोल रहे थे कि आप इग्नोर करो इस मैटर को। आप एक चीज नोटिस करो, हम दोनों की फेसिस आप देखो, आपको कोई लड़ाई झगड़े वाले लग रहे हैं? अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन पहले तक मेरे भी दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा था, ऐसे कैसे वैसे। नहीं, कुछ नहीं। देखो, गुरु नानक देव जी थे, जहाँ रामचंद्र जी थे, जहाँ और भी महान बंदे जो भी हुए, सारी दुनिया देखो उनसे भी खुश नहीं हो पाई। आज उनके जाने के बाद हम लोग बहुत कुछ करते हैं, उनको पूजते भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन उस टाइम लोगों ने बहुत डिसरिस्पेक्ट करी। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ। टाइम जो होता है ना, टाइम, देखो जब कोई सी भी नई चीज की एंट्री होती है तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन टाइम 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 टाइम। और जब आप उसको शो करते जाओगे कि ओके, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, तो सामने वाले को भी समझ आता है कि ओके, सिर्फ बातें ही नहीं है, यहाँ एक्चुअल यूज में आ भी रहा है। हम अपनी तरफ से आपको क्लियर करें, हम सिर्फ आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, ताकि आप मिसगाइड ना हो, आप किसी गलत ट्रैक पे जाके कोई गलत चीज बाय ना करो। सारे टूल अच्छे हैं, कोई टूल गलत नहीं है। टूल लेने से पहले आप थोड़ी अपनी नॉलेज इंक्रीज करो प्लीज, ये ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए ना, तो उम्मीद है आपको जल्दी किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिग्नल्स देख के, आप मल्टीमीटर का मैनुअल रीड करके, मैनुअल का मेरा मतलब है उसकी कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज आप रीड करके, आप डीएसओ की कैपेबिलिटीज रीड करके, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि ये लाइन चेक करने के लिए आपका मल्टीमीटर बेस्ट है या नहीं, या लॉजिक बेस्ट है या नहीं, या डीएसओ बेस्ट है या नहीं। समस्या कहाँ आती है? आप किसी से सलाह क्यों लेते हो? क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं है। अगर आप खुद ही उसके बारे में सीख लो, समझ लो, तो आपको कोई बंदा मिसगाइड नहीं कर सकता, हम भी नहीं, कोई और भी नहीं। बात है, अहम होती है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, देखो, कोई बंदा किसी से धन छीन सकता है, ठीक है, फोन चोरी हो जाते हैं, हाँ, फोन कोई किसी का छीन सकता है, कुछ भी, लेकिन आपकी नॉलेज कोई नहीं छीन सकता। आपको इस बात को समझना चाहिए। अगर आपके पास एक स्किल है, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। प्लस अगर आपके पास नॉलेज है, वो बेस्ट है। नॉलेज से बेस्ट कुछ भी नहीं है। जितना हो सकता है अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में हो। जितना हो सकता है अपना स्केमेटिक्स क्लियर करो, ताकि आपको समझ आ सके कौन सी लाइन कैसे ट्रेस करनी है, कैसे काम कर रही है, वहां क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। हमारी तरफ से किसी के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं था, ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन थी। क्योंकि ऐसी क्लैरिफिकेशन किसी ने दी नहीं, सिर्फ बंदा बोल के छोड़ देता है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको, जो आप बोल रहे हो, आपको अपने वर्ड्स के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, जिम्मेवार होना पड़ेगा। आपको वो चीज सामने दिखानी पड़ेगी। अभी जैसे कुछ चीजें हमने दिखाई, काफी बंदों को तो ये भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन वो डीएसओ या लॉजिक खरीदना चाह रहे। आपको ये चीज समझनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ जाने से पहले, बस 5 मिनट। एक बंदे ने मुझे कॉल किया, वो, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं डीएसओ बाय करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनको पूछा अभी क्या चला रहे हो? बोले मल्टीमीटर चला रहा हूँ। तो मैंने पूछा मल्टीमीटर में इतनी टैब्स हैं, ये वाली टैब का क्या मतलब है, ये वाली टैब का क्या मतलब है? उन्होंने मुझे सीधा रिप्लाई दिया कि आज तक मैंने बीप मोड और वोल्टेज मोड के बिना या डायोड मोड के बिना कोई टैब और यूज ही नहीं करी। मैंने कहा जी, जब आपको अच्छे से मल्टीमीटर का नहीं पता कि ओम क्या है, करंट क्या है, जहाँ आपकी कई मल्टीमीटर में आपको हर्ट्ज भी मिल जाते हैं, वो क्या है, सर डीएसओ लेके क्या करोगे? जान, कई बार आपको लगता है ये है
की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं डीएसओ बाय कर लूंगा तो मेरे लिए डीएसओ शायद चमत्कार कर देगा। नहीं, डीएसओ एक टूल है। ड्राइवर आप हो, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप कार चला सकते हो, अगर आपको डीएसओ चलाना आता है तो आप डीएसओ चला सकते हो। अगर सर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आपके लिए कार भी यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। सेम ही डीएसओ के साथ भी हो जाएगा। तो आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा अहम है, पहले उसको गेन करो। जब नॉलेज गेन हो जाएगी तो आपको खुद ही एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या आपके लिए यूजलेस है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको काफी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। जितना हो सके इस लाइव को शेयर करिएगा, ताकि और बंदों के भी जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके वो क्लियर हो सके। हमारा यहाँ कोई और मोटिव नहीं है, हम किसी को कोई नीचा नहीं दिखाना चाह रहे। आप इस लाइव में नोटिस कर सकते हो, हम सिर्फ टूल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी से हमारा कोई लेन देन नहीं है। कोई भी बंदा किसी भी ट्रैक पे गलत चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा एक अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक टूल के बारे में, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोग एक सही डायरेक्शन में जा सको, सही डिसीजन ले सको। किसी का कोई दिल दुखाया हो तो माफी चाहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए इससे बेनिफिट होगा। फिर Okay, Habibis. See you. Bye bye. Thank you. ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं कभी। अभी हम कोशिश करेंगे बातें कम काम ज्यादा, आपको See सिर्फ you in रिजल्ट शो February. करेंगे। See you यस, in February. February 2024 in Punjab again. ओके। एक चीज और, अभी जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा फेयर और रोमानी के साथ, वो हमारा जनवरी में शुरू होगा। इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें एक स्पेशल सेशन हम रख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जिन बंदों को बेसिक क्लियर नहीं है उनको हम एक हफ्ता पहले बुलाएंगे, मतलब फेयर और रोमानी के आने से भी पहले, ताकि आप लोग थोड़ा उस काबिल हो पाओ कि आपको वो चीजें समझ आ सके कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीक जो रहेगा आपका रोमानी का रहेगा, लास्ट वीक जो है आपका फॉर एग्जाम्पल प्लस रोमानी प्लस हमारा तीनों का रहेगा, प्लस हमारी जो भी सारी टीम है वो सब साथ रहेगी। तो उसकी भी बुकिंग स्टार्ट है, आप लोग बुकिंग कर सकते हो। Okay, आप बुकिंग कर Habibis. सकते हो उस बैच में, अगर आपको आना है तो नंबर, आपको इनकी आईडी है, खैर आप इनसे नंबर ले सकते हो। जहां इंडिया में आप नंबर लेना चाह रहे हो तो सीधा मेरा नंबर भी ले सकते हो, 9888988083। आप इस पे मैसेज कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। या फिर को मैसेज कर सकते हो, उनसे डिटेल्स मिल जाएंगी। या मेरी फेसबुक आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, Take care, Habibis. I सी यू love सून, you. Bye bye. Bye लव यू टू। bye.